નમસ્કાર, બુલેટિન ઇન્ડિયાની વિશેષ રજૂઆત સાથે હું છું મુસ્કાન। સપનાની ઉડાન શબ્દ સાંભળતાની સાથે આપણને પહેલો વિચાર એ જ આવે કે સપના આપણા વિદેશમાં પૂરા થાય છે। જી હા, ભારતમાં પણ મહદઅંશે સપનાઓ પૂરા થાય છે, પરંતુ આપણા સપના જો મોટા હોય તો આપણે એ સપના વિદેશમાં જઈને પૂરા કરી શકતા હોય છે। તો શું વિદેશમાં જવાનું આપણું પણ સપનું છે? શું વિદેશમાં જવા તમે પણ માંગો છો? ઘણા બધા વિદેશમાં જવા માંગતા હોય છે, પરંતુ તેને અટકળો ઘણી બધી હોય છે કે વિદેશમાં જવું કેવી રીતે, વિદેશમાં જવા માટે શું પ્રોસેસ કરવામાં આવે છે, વિદેશમાં જવા માટે વિઝા ક્યાંથી મળે છે, આપણો પાસપોર્ટ જે છે તે આપણે ક્યાંથી કઢાવવો પડે છે, એવા અઢળક સવાલો થતા હોય છે અને ત્યાં જઈને પછી આપણે વિદેશ પહોંચતા હોય છે। વિદેશ પહોંચ્યા પછી પણ અટકળો ખતમ નથી થતી। વિદેશ પહોંચ્યાની સાથે જ આપણે ત્યાંના પીઆર કેવી રીતે થવું જોઈએ, એના માટે શું પ્રોસેસ હોય છે, એવી ઘણી બધી પ્રોસેસો બાદ આપણે વિદેશ જવાના સપનાને સાકાર કરી શકીએ છીએ। તો આજે આ વિષય પર આપણે એ ચર્ચાઓ કરીશું કે વિદેશ કેવી રીતે જવું જોઈએ, એના માટે પ્રોસેસ શું છે, કંઈક અટકળો હોય તો એનું સોલ્યુશન શું છે, એ તમામ વિશે આજે આ ટોપિક પર આપણે ચર્ચા કરીશું। તો હવે અહીંયા સવાલ એ થાય છે કે શું આપણું વિદેશમાં જવાનું સપનું સાકાર થઈ શકશે ખરા? જો આપણી પાસે સચોટ, સ્પષ્ટ અને સાચા એડવાઇઝર હોય તો આપણું આ સપનું પણ સાકાર થઈ જશે। હવે તમને એ લાગશે કે હવે આ સ્પષ્ટ, સચોટ અને સાચા એડવાઇઝર શોધવા કેવી રીતે, પરંતુ હવે તમારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે બુલેટિન ઇન્ડિયા એ સ્પષ્ટ, સચોટ અને સાચા એડવાઇઝરને લાવ્યું છે તમારી સમક્ષ, જે તમને બતાવશે કે ખરેખર વિદેશ જવાનું સપનું તમારું સાકાર થશે કે કેમ। તો આ જ વિષય પર અમારી સાથે ચર્ચા કરવા ઉપસ્થિત છે ઇમિગ્રેશન એન્ડ સ્ટડી વિઝા એડવાઇઝર નીતા તોરાની ઉપસ્થિત છે, જે સચોટ, સ્પષ્ટ અને સાચા એડવાઇઝર છે, જે તમને સચોટ માહિતી આપશે કે વિદેશમાં જવું હોય તો તમારે શું કાર્યવાહી કરવી પડે, તમારે વિઝા નીકળવા હોય તો શું કરવું પડે, પીઆર થવા માટે શું કરવું પડે, આ તમામ પ્રકારની માહિતી આપણી સાથે જે એડવાઇઝર ઉપસ્થિત છે એમની પાસેથી આપણે લઈશું। નીતાજી, બુલેટિન ઇન્ડિયામાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। થેન્ક યુ। તો ખાસ કરીને આપણે આ વિષયની શરૂઆત કરતાની સાથે જ ઘણા બધા સવાલો મને પણ છે કે વિદેશમાં જવું હોય તો ખરેખર બહુ લાંબી પ્રોસેસ કરવી પડતી હોય છે અને ઘણા બધા લોકો એ અટકળોમાં જ જેમને સાચા એડવાઇઝર ન મળવાને કારણે એ જે સપનું છે તે ત્યાં ને ત્યાં મૂકી દેતા હોય છે અને તે નથી જઈ શકતા વિદેશ। પરંતુ હવે એ માટે તમારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે હવે એક એડવાઇઝર જે છે એ આપણને સચોટ માહિતી આપશે કે ખરેખર વિદેશમાં જવાનું આપણું સપનું સાકાર થઈ શકે છે। તો ચલો હવે આ ડિબેટની આપણે શરૂઆત કરીએ। તો મારો પહેલો પ્રશ્ન નીતાજીને રહેશે। નીતાજી, ખાસ કરીને એમ્બસી અને કોન્સ્યુલેટમાં શું ફરક હોય છે? અને કહેવાય છે કે એમ્બસી અને કોન્સ્યુલેટ એક अलग प्रकारનું હોય છે, તો આ બંનેમાં ફરક શું હોય છે, દર્શક મિત્રોને જણાવશો। थैंक यू फॉर आस्किंग मी जी। देखिए, एम्बेसी और कॉन्सुलेट में क्या फ़र्क होता है, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में समझाती हूँ। एम्बेसी क्या है कि आपको किसी भी देश की एक मेजर सिटी में देखने को मिल जाएगी। जैसे इंडिया है तो इंडिया की मेजर सिटी दिल्ली, तो दिल्ली में आपको कनाडा की एम्बेसी देखने को मिल जाएगी। एम्बेसी का काम क्या है, तो कैंडिडेट जब कंफ्यूज होता है कि मेरा वीज़ा रिजेक्शन क्यों आया, उसके पीछे के रीजंस क्या है, तो एम्बेसी उसको आंसर करती है। बट एम्बेसी से पहले जो परफॉर्मेंस रहता है वो कॉन्सुलेट का रहता है। तो डायरेक्टली जब कैंडिडेट होता है तो वो एम्बेसी में नहीं जाता, पहले वो अपने ही देश की किसी सिटीज़ में कॉन्सुलेट होती है, वो हर जगह पे आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन जो एम्बेसी है वो सिर्फ और सिर्फ मेजर सिटी में आपको देखने को मिल जाएगी, राइट। तो पहले क्या करता है कैंडिडेट, डायरेक्टली कॉन्सुलेट में देते हैं एग्ज़ाम। તો આ સાથે જે રીતે આપણી સાથે આ એડવાઇઝર ઉપસ્થિત છે તે આપણને જણાવી રહ્યા છે કે ખરેખર એમ્બસી અને કોન્સ્યુલેટમાં શું ફરક હોય છે। તો આ સાથે મહત્વનું અહીંયા એ છે કે ઘણા ખરા લોકોને
વિદેશમાં જવાનું સપનું તો હોય છે, પરંતુ તેના માટે સચોટ માહિતી તેમની પાસે હોતી નથી. એટલે આ એડવાઇઝર આપણને આજે ઘણી પ્રકારની માહિતી આપશે. ફરીથી આપણે એડવાઇઝરને ઘણા બધા ક્વેશ્ચન કરીશું. नीता जी, मेरा आपको फिर से यही क्वेश्चन रहेगा कि एम्बेसी और कॉन्सुलेट में क्या फर्क होता है? मैंने जैसे बताया आपको कि एम्बेसी आपको देश की किसी एक मेजर सिटी में देखने को मिल जाएगा. जैसे इंडिया है तो इंडिया की मेजर सिटी हमारी दिल्ली है जी. तो आपको दिल्ली में हमारी एम्बेसी देखने को मिल जाएगी. वो सपोज कनाडा की हो या फिर आप यूएसए की एम्बेसी ले लीजिए, तो आपको एम्बेसी मेजर सिटी पे देखने को मिल जाएगी. इसका काम है कैंडिडेट के क्वेश्चन का कंप्लेन को आंसर करना और उसके अलावा रिजेक्शन देना, अप्रूवल देना. तो ये सारे काम हैं उनके. और उसके अलावा अगर मैं कॉन्सुलेट की बात करूं तो कॉन्सुलेट आपको देश के हर एक हिस्से में विभिन्न हिस्से में देखने को मिल जाएंगे. ठीक है. कॉन्सुलेट का काम यही है एप्लीकेंट के क्वेश्चन के आंसर देना, कंप्लेन को सुलझाना और उस कंप्लेन को एम्बेसी तक ले जाना. तो ये है कॉन्सुलेट का काम. इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एम्बेसी और कॉन्सुलेट को. जी. तो अभी नीता जी ने हमको बताया कि अभी जो कॉन्सुलेट है और जो एम्बेसी है उसमें क्या डिफरेंस है. लोगों को जानकारी नहीं होती कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है. तो अब हम आगे उनको ही पूछेंगे कि अगर हमको कनाडा का पीआर मिल जाता है, अगर हम कनाडा के पीआर हो जाते हैं तो उसके बेनिफिट हमको कौन कौन से हो सकते हैं. ओके. कनाडा में अगर पीआर होते हैं तो पीआर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको मेडिकल, हेल्थ इंश्योरेंस सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है. आप एटलीस्ट आप वोट नहीं कर सकते. वोट वो कर सकते हैं जो सिटीजन होते हैं, राइट. तो सिटीजन से एक स्टेप नीचे हम अगर कहेंगे तो विच इज पीआर. तो पीआर के फायदे ये हैं कि अगर आप मैरिड कपल हैं और आप शादी करके अगर वहां गए हैं या वहीं पे जाकर आप शादी कर रहे हैं, राइट. तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि उनको उनके बच्चों का फ्री एजुकेशन मिलता है. तो ये सारे बेनिफिट्स है. फ्री एजुकेशन मिलना और कैनेडियन गवर्नमेंट एवरी मंथ आपको कुछ डॉलर्स आपको पे करती है वहाँ पे सरवाइव करने के लिए. और उसके अलावा भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स है जॉब के भी. अगर आप पीआर है तो आपको पहले ही प्रेफरेंस दिया जाएगा जॉब करने के लिए. जी. તો અત્યારે આપણને નીતાજી જણાવી રહ્યા છે કે ખરેખર વિદેશમાં જવાના ફાયદા તો છે, જેને ખાસ કેનેડામાં જઈએ અને પછી કયા આપણને ફાયદા થાય છે તે પણ નીતાજી દ્વારા આપણને જણાવવામાં આવ્યું. नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि अगर इंडिया में कोई नर्स है, कोई डॉक्टर है और अगर वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जाता है तो क्या वहाँ डायरेक्ट जाके उसको जॉब मिल जाएगी? अगर उसको वहाँ पे जॉब मिलती है तो क्राइटेरिया क्या होगा उसका? सैलरी किस बेसिस पे उसको दी जाएगी, या फिर इधर से जाने के बाद उसको थोड़ा हर्डल्स फेस करने के बाद उसको जॉब मिलेगी? नीता जी. जी. मैं इसमें ये बताना चाहूँगी कि जैसे डॉक्टर्स हैं, नर्स है, ये सारे रेगुलेटेड प्रोफेशंस में आते हैं. तो रेगुलेटेड प्रोफेशन में ये रहता है कि डायरेक्टली आपको उसी स्ट्रीम का जॉब नहीं मिलता. फर्स्ट ऑफ ऑल उसका रीज़न सबसे बड़ा यही है मैम कि रेगुलेटेड प्रोफेशन को लाइसेंस चाहिए होता है. जैसे अभी हेल्थ केयर है, नर्सिस है, डॉक्टर है, तो उनको वहाँ पे जाके उनकी पढ़ाई करनी होती है. उनके देश की किसी भी एक कंट्री, सपोज मैं कनाडा की अगर बात करूँ मैं, तो कनाडा में ये है कि सबसे पहले कि आपको वहाँ पे जाकर उसी कंट्री की एग्ज़ाम देनी होगी. जैसे यूके में है तो यूके में NHS की एग्ज़ाम होती है. अगर गल्फ कंट्री की बात करूँ तो MOH होती है, हाद होती है, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ केयर जिसे बोलते हैं, राइट. उसके अलावा अगर मैं नेदरलैंड की बात करूँ तो नेदरलैंड में BIG सर्टिफाइड होते हैं. तो BIG सर्टिफाइड मतलब बिग सर्टिफाइड, राइट. उसके बाद ही आपको नर्स की एग्जाम मिल सकती है. लेकिन सेकंड ऑप्शन ये रहता है, जैसे मेरे पास कोई कैंडिडेट आया, उसने ये एग्जाम नहीं दिया हुआ, स्टिल वो मुझे बोल रहा है कि मुझे एज अ नर्स मुझे आउट ऑफ कंट्री जॉब करनी है, तो हमारे पास एक ऑप्शन ये रहता है कि हम उसको केयर गिवर में भेजते हैं, राइट. कम्युनिटी सेंटर में हम उसको जॉब दिलवाते हैं. तो कम्युनिटी सेंटर में हेल्थ केयर में वो जॉब देता है. इन बिटवीन वो कैंडिडेट उसी एग्ज़ाम की तैयारी करता है. उसी एग्ज़ाम की तैयारी करने के बाद उसकी सैलरी और अप हो जाती है. हालांकि कम्युनिटी सेंटर, हेल्थ केयर सेंटर और केयर गिवर में उसे नॉमिनल सैलरी मिलती है. और जब नर्सिंग की जॉब अगर वो सर्टिफाइड हो जाता है, पास होता है एग्ज़ाम, नर्सिंग की जॉब अगर मिलती है तो उसको कनाडा में 3 से 5,000 कैट की सैलरी मिलती है. और अगर मैं दुबई या गल्फ की बात करूं तो उनको कुछ 3,000 से 6,000 दिरहम के बीच में सैलरी मिलती है अगर वो MOH સર્ટિફાઈડ है. જી. તો અત્યારે આપણને એવું લાગતું હોય છે કે જ્યારે આપણે
ભારત છોડીને કોઈ બીજી કન્ટ્રીમાં જઈએ એટલે આપણને તરત જ નોકરી મળી જાય, પરંતુ એવું નથી હોતું. જેમ આપણને નીતાજી જણાવી રહ્યા છે કે એના માટે પણ ઘણી બધી પ્રોસેસ આપણે કરવાની હોય છે. એટલા માટે કે એડવાઇઝર આપણને એડવાઇસ આપે એ પ્રમાણે આપણે આગળ વધીએ તો કદાચ આપણને જે ઇન્ડિયા સિવાય ઇન્ડિયામાં જે જોબ કરીએ છીએ અને બહારના દેશોમાં જે જોબ કરીએ છીએ સેમ થાય, એના માટે આપણે એક એડવાઇઝરની એડવાઇસ લેવી જરૂરી છે અને ત્યારબાદ જે પ્રોसेस છે તે પણ કરવી જરૂરી છે. उसके बाद नीताजी मेरा आपको ये क्वेश्चन रहेगा कि हम अगर नैनी नर्स की बात करें तो नैनी नर्स की जॉब हमको कौन कौन सी कंट्री में मिल सकती है, उसका क्राइटेरिया, उसका जॉब टाइटल और उसकी सैलरी. नैनी नर्स की जॉब में ऐसा है मैम, जैसे मैंने बताया कि उसकी एलिजिबिलिटी जीएनएम नर्सिंग, एएनएम नर्सिंग, उसके अलावा बीएससी नर्सिंग होना चाहिए. ठीक है, मेडिकल हेल्थ केयर प्रोफेशन से होने चाहिए, एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए. ठीक है, तो उस तरह से सारे ये एलिजिबिलिटी फैक्टर्स है. उसके अलावा कि अगर सपोज उनको केयर गिवर का भी अगर एक्सपीरियंस है तो भी वो किसी और कंट्री में माइग्रेट कर सकते हैं. और अगर मैं दूसरी बात कहूँ कि जैसे मैंने कहा कि सर्टिफाइड होने चाहिए, तो ये सर्टिफाइड बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. अगर सर्टिफाइड नहीं है तो उनको आउट ऑफ कंट्री भी जॉब नहीं मिलेगा. अगर मिलेगा तो उनको एग्जाम पास करना पड़ेगा और इन ड्यूरेशन उनको केयर गिवर में कम्युनिटी सेंटर में जॉब करना पड़ेगा. और उसके अलावा अगर मैं कहूँ तो ये जॉब जो है वो आपको गल्फ में मिल जाएगी, कनाडा मिल जाएगी, यूके मिल जाएगी, नेदरलैंड मिल जाएगी, स्कॉटलैंड में मिल जाएगी. और दूसरी बात कि जो नर्सिंग हेल्थ केयर डिपार्टमेंट वाले लोग हैं जो रेगुलेटेड प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, इनकी डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड है जी. सबसे बड़ी बात है, ऑल ओवर द वर्ल्ड है इनकी डिमांड. और अगर इनकी सैलरी में बताऊं तो सैलरी स्टार्टिंग जैसे मैंने बताया कि नॉमिनल पैकेज से शुरू होती है, फिर हाइक पे जाती है इनकी सैलरी जब ये सर्टिफाइड हो जाता है. जी, તો નીતાજીને એવું કહેવું છે કે સ્લોલી અને ગ્રેજ્યુઅલી જો નેની નર્સ છે એની પણ સેલરી પહેલા પેકેજ પર હોય છે અને એના પછી એની જે સેલરી છે એ ધીરે ધીરે એની હાઈ થાય છે. પરંતુ અહીંયા કહી શકાય કે આપણા મનમાં અટકળો ઘણી બધી હોય છે કે ત્યાં સેલરી શું બેઝ પર હોય છે, કેટલી સેલરી હોય છે. અને અમુક લોકોને એવું પણ હોતું હોય છે કે બહારના દેશમાં જઈએ એટલે આપણે અઢળક પૈસા કમાતા હોઈએ છીએ. હા, એ વસ્તુ સત્ય છે, પરંતુ આપણી પાસે જો પૂરતું નોલેજ ના હોય, પૂરતી માહિતી ન હોય તો આ તમામ જે અટકળો છે તે અટકળો જ બનીને રહી જાય છે. એના માટે આપણે એડવાઇઝરની જરૂર પડે જ છે. नीताजी, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि अगर यूके में हमको वर्क वीजा मिलता है, राइट, तो लोग ऐसा बोलते हैं कि यूके में, मैंने जब तक लोगों को देखा है बोलते हुए, तो लोग यही बोलते हैं कि यूके में वर्क वीजा बहुत हार्डली मिलता है. मीन्स लोग चाहते हैं पर उनको यूके में वीजा नहीं मिलता. अगर हमको यूके में वीजा मिलता है तो उसके लिए हमको कौन सी कैटेगरी में वीजा मिलता है और वो कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं? जी, यूके में वर्क वीजा मिलना ऑब्वियसली हार्ड है, इवन पीआर मिलना भी हार्ड है. यूके में वर्क वीजा की जो कैटेगरी है उसको हम लोग कहते हैं टायर 2 वीजा, यूके टायर 2 वीजा विच इज वर्क वीजा, राइट. तो वर्क वीजा रहता है ये, और ये जो मिलता है वो स्किल्ड वर्कर को मिलता है. जैसे मैंने आपको बताया कि स्किल्ड वर्कर में यूके के लिए जो डिमांड में है उनको ये टायर 2 वीजा मिलेगा. जैसे नर्स हो गई, शेफ हो गए, कुक्स हो गए, राइट, आईटी के जो कैंडिडेट हैं वो हो गए. और लेबर कैटेगरी को भी ये जॉब मिल सकती है, लेकिन थोड़ा सर्टिफिकेशन मांगता है यूके, एटलीस्ट सर्टिफाइड हो और एक्सपीरियंस हो. लेबर क्लास को भी ये जॉब मिल सकता है क्लीनिंग में, इसमें उसमें, राइट. तो यहाँ से आउट ऑफ कंट्री माइग्रेट होके कैंडिडेट अच्छे से अर्न कर सकते हैं. और उसके अलावा जो सैलरी स्ट्रक्चर रहता है वो स्टार्टिंग बेस पे 2 से 3 हज़ार पाउंड रहता है. ठीक है, इस तरह से यूके का रहता है. और उसके बाद क्या है कि 2 to 3 ईयर का वीज़ा रहता है ये स्टार्टिंग बेस. और अगर बाद में मैं कहूँ तो कैंडिडेट का परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए, हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए, यूके गवर्नमेंट शायद हो सकता है आपको अनलिमिटेड स्टे वीज़ा की कैटेगरी जैसे होता है वो भी वीज़ा आपको ऑफर कर. तो ये सारे क्राइटेरिया है, बिकॉज यूके पीआर नहीं देता है. और काफी लोगों को ये आइडिया नहीं है कि यूके, मुझे काफी सारे मेरे पास कैंडिडेट आते हैं मैम, तो वो मुझे बोलते हैं कि मैम मुझे यूके में पीआर होना है. लेकिन खैर उसके बारे में हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे. तो ये था टायर 2 वीजा के बारे में. जी, તો નીતાજી દ્વારા આપણને જણાવવામાં આવ્યું કે તમને વિદેશમાં જઈને પણ નોકરી મળી શકે છે, પરંતુ એના માટે તમને થોડો એક્સપિરિયન્સ હોવો જોઈએ. કારણ કે આપણે એવું વિચારતા હોઈએ છીએ કે આપણે ભારતમાંથી જેવા ગયા છીએ એવી જ આપણને નોકરી મળી જાય, તો એ શક્ય નથી. જેમ નીતાજી આપણને જણાવી રહ્યા છે કે થોડો તમારી પાસે અનુભવ હોવો જોઈએ
અને આ સાથે જે યુકેની ગવર્મેન્ટ છે તે પણ આ બધું ચેક કરે છે અબાઉટ યોર હિસ્ટ્રી, તમે કંઈ ઇલીગલ કામ નથી કર્યું, અને એ પ્રમાણે તમને ક્યાંક ને ક્યાંક કહી શકાય કે આ દરેક જગ્યાએ નોકરી આપવામાં આવી છે. તો આ સાથે અહીંયા મહત્વનું એ છે કે કદાચ જો તમે કોઈ પણ જગ્યાએ નોકરી મેળવવા ઈચ્છતા હોય તો આ સાથે જ તમારે જે નોલેજ છે એ હોવું જોઈએ, આ સાથે તમારી હિસ્ટ્રી છે એ ક્લીન હોવી જોઈએ. પછી તમે ઇલીગલ કામ કર્યું હોય અને પછી તમે યુકેમાં પીઆર થવા માંગો તો એમાં એડવાઇઝર પણ કંઈ જ ન કરી શકે, કારણ કે એડવાઇઝર એવી સલાહ આપે છે કે તમારી હિસ્ટ્રી ક્લીન હોવી જોઈએ. ત્યારબાદ आगे આપણે चर्चाओं करीशू. नीता जी, मेरा आपको ये सवाल था कि अगर हमको ड्राइवर की जॉब चाहिए, राइट, अगर हम इंडिया से बाहर गए हैं और सडनली हमको जो फील्ड में हम जॉब करते हैं उस फील्ड में हमको जॉब नहीं मिली और उस दौरान को हमको अगर ड्राइवर में जॉब चाहिए तो ड्राइवर में हमको कौन कौन सी कंट्री में जॉब मिल सकती है, उसके लिए क्राइटेरिया क्या होगा और सैलरी क्या होगी उनकी? जी, अगर मैं ड्राइवर की बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज होती है हमारे पास वो होती है गल्फ कंट्रीज़ की. और गल्फ का जो लाइसेंस है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब डिमांड में है. अगर गल्फ का अगर लाइसेंस आपके पास है, इंटरनेशनल लाइसेंस आपके पास है, तो आप वर्ल्ड के किसी कोने में भी आप मतलब जॉब ले सकते हैं. और उसके क्राइटेरिया में सिंपल सा है, यहाँ का उसको लाइसेंस होना चाहिए इंडिया का, प्लस हम लोग यहाँ से कैंडिडेट के लिए इंटरनेशनल लाइसेंस की प्रोसेस करते हैं जी. अगर उनके पास है तो विच इज़ वेरी गुड, अगर नहीं है तो हम लोग खुद प्रोसेस करते हैं. उसके अलावा और उनकी जो स्टार्टिंग सैलरी रहती है, अगर मैं गल्फ में कहूँ तो 3,000 से 4,000 दिरहम सैलरी होती है स्टार्टिंग बेस पे. और उसके अलावा अगर वो ओवर टाइम काम करता है तो उसे OT भी मिलता है. तो ये सारे फायदे हैं. और उसके अलावा अगर मैं कनाडा की बात करूँ तो कनाडा में कार ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, हैवी व्हीकल की क्या सैलरी रहती है और उनको PR कैसे मिलता है, तो वो हम लोग आगे जरूर चर्चा करेंगे इस बारे में. तो ये मैंने आपको गल्फ का बताया. और काफी जगह पे कार ड्राइवर की काफी जगह पे डिमांड है जी. तो जैसे आपने बताया कि अभी हम आगे बात करें, तो मैं आपको क्वेश्चन पूछ ही लेती हूँ कि अगर हमको कनाडा में ट्रक ड्राइवर बनना है, अगर उसकी जॉब चाहिए तो उसके क्राइटेरिया क्या रहेगी और सैलरी उनको क्या प्रोवाइड करी जाएगी? जी, कनाडा में अगर ट्रक ड्राइवर बनना है तो सबसे बड़ा क्या है कि उस ड्राइवर को एटलीस्ट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा, विच इज़ कॉल्ड IELTS. मतलब IELTS की एग्जाम देनी पड़ेगी, उसमें मिनिमम 5.5 से 6 बैंड उसे लाने पड़ेंगे. ठीक है, तो उसे IELTS की एग्जाम पास करनी पड़ेगी, उसे PR की प्रोसीजर करनी पड़ेगी, PR का कार्ड लेना होगा. उसके बाद वो ट्रक ड्राइवर के लिए या कार ड्राइवर के लिए वो अप्लाई कर सकता है. तो इस तरह से कार ड्राइवर की प्रोसीजर होती है, क्योंकि कनाडा विदाउट IELTS, विदाउट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपको एंट्री नहीं देता है. मुझे कुछ कैंडिडेट आकर ये बोलते हैं डायरेक्टली, मैडम मैंने ये मेरा स्किल है तो आप मुझे माइग्रेट कर दीजिए, आप मुझे भेज दीजिए, विच इज़ नॉट पॉसिबल एक्चुअली. क्योंकि देखिए, कोई भी कंट्री में अगर माइग्रेट होना है तो उस क्राइटेरिया में आपको फॉलो होना पड़ेगा. मैं कैंडिडेट को हमेशा बार बार यही कहती हूँ. और कुछ कैंडिडेट जिद पकड़ के आते हैं कि मैडम मुझे यहाँ माइग्रेट कर दो, मैं विच इज़ नॉट पॉसिबल. क्योंकि आप उस पर्टिकुलरली कंट्री के गवर्नमेंट के जो रूल्स है उसमें आप फॉलो करने चाहिए, राइट. उसके क्राइटेरिया में आप मैच होने चाहिए, तब जाकर के मैं आपके लिए कुछ हेल्प कर सकती हूँ. तो ये है ट्रक ड्राइवर के बारे में. जी जी. તો જેવી રીતે નીતાજી આપણને જણાવી રહ્યા છે કે જો તમારે કેનેડામાં ટ્રક ડ્રાઈવર થવું હોય તો આપણે એના માટે એલિજિબલ હોવા જરૂરી છે. જેમ કે IELTS ની એક્ઝામ આપણે આપવી પડે, એના પછી પણ આપણે ઘણી બધી પ્રોસેસ કરવી હોય છે. એટલે આપણે અમુક લોકો એવું વિચારતા હોઈએ છે કે જે વિદેશ જવાનું સપનું જે આપણું છે તે અટકી કેમ જતું હોય છે. અહીંયા એ સવાલ અહીંયા ઊભો થાય છે કે આપણા ભારતમાં એવું છે કે ડ્રાઈવર બનવું ને ઇઝી વાત છે. આપણા ફ્રેન્ડને વાત કરો, અરે મારે ગાડીનું ડ્રાઈવર બનવું છે, શું હું બની જઈશ? તો આપણા ભારતમાં આપણે બની જઈશું. પરંતુ જો કેનેડામાં બનવું હોય તો જેમ નીતાજી આપણને જણાવી રહ્યા છે કે IELTS ની એક્ઝામ આપવી પડશે, ત્યારબાદ એ તમારી હિસ્ટ્રી ચેક કરશે, તમારી પ્રોસેસ થશે, ત્યારબાદ તમે જો એલિજિબલ છો તમારું ડ્રાઇવિંગ ચેક થશે ને પછી જ તમે ડ્રાઈવર બની શકશો. તો આ બધી પ્રોસેસ બાદ તમે કેનેડામાં ડ્રાઈવર બની શકો એ શક્યતાઓ છે. ઇન્ડિયામાં આખી પ્રોસેસ અલગ છે, એકના સાથે બીજું કોઈ વાત કરે ને એમ આપણે ડ્રાઈવર બની શકતા હોઈએ છીએ. પરંતુ વિદેશમાં જો ડ્રાઈવર બનવું હોય તો જે તે એક્સપર્ટ આપણે જણાવી રહ્યા છે એવી તમામ પ્રોસેસ કરીને જ આપણે ડ્રાઈવર બની શકશું. આ સાથે नीता जी, मेरा आपको आगे क्वेश्चन ये है कि IT पर्सन हो, अगर कोई डॉक्टर हो, कुक हो, तो उसको क्या आसानी से कनाडा में जॉब मिल सकती है? यस. हाँ,
अगर मैं IT पर्सन, कुक, शेफ या हेल्थ केयर प्रोफेशन वाले जो भी मतलब कैंडिडेट हैं, उनको कनाडा में इसलिए जल्दी जॉब मिल सकती है बिकॉज ये जो सारे जो भी स्किल वाले लोग हैं, जो भी सारे स्किल वाले कैंडिडेट हैं, इन लोगों की कनाडा में हाई डिमांड है, हाई डिमांड है। अगर ये लोग PR के लिए भी अप्लाई करते हैं तो इनका कम से कम बैंड में भी PR हो जाता है, 5.5 से 6 बैंड में भी PR हो जाता है। PR होने के बाद वो सीधा अगर अप्लाई करेंगे तो उनको जॉब भी इजीली मिल जाती है उनकी ही फील्ड में। और लेकिन हाँ, एक क्राइटेरिया है, PR होने के बाद उनको उनके लाइसेंस बेस्ड एग्जाम देनी पड़ती है, लेकिन कुक और शेफ के मामले में ये चीज नहीं आती है। अगर मैं IT प्रोफेशंस की बात करूं, अगर मैं हेल्थ केयर की बात करूं, तो आपको उसमें एग्जाम देने की जरूरत है, वहाँ के लाइसेंस बेस्ड। कुक और शेफ को कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, उनका सीधा PR हो गया और सीधा वो जॉब ले सकते हैं। जी, तो જે તે નીતાજી જણાવી રહ્યા છે કે ખાસ કરીને જો આપણે ઓસ્ટ્રેલિયાની વાત કરીએ તો કોઈ બી કેનેડા, ઓસ્ટ્રેલિયાની આપણે જો IT પર્સન હોય તો તેને ખરેખર ત્યાં જે ક્રાઇટેરિયા પ્રમાણે જે છે એ પ્રમાણે ચાલવાનું હોય છે, પરંતુ ડોક્ટર અને કુક જે છે તેને કેનેડામાં ઇઝીલી જોબ મળી જતી હોય છે અને તે PR પણ ઇઝીલી ઓછા બેન્ડમાં થઈ જતા હોય છે। उसके बाद नीताजी मेरा क्वेश्चन आपको ये रहेगा कि ऑस्ट्रेलिया में PR कैसे होते हैं? अगर हम PR हो चुके तो उसकी प्रोसेस क्या रहती है, और PR अगर हमको होना है वहां पे तो IELTS के हमको कितने बैंड चाहिए? ओके, ऑस्ट्रेलिया में PR होना सबसे टफ है। टफ इसलिए ओनली बिकॉज ऑफ IELTS बैंड, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, राइट। IELTS के साथ भी हम लोग PR ले सकते हैं। PTE की एग्जाम एक आती है, वो भी इजी होती है IELTS के मुकाबले, लेकिन IELTS ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड फेमस एग्जाम है, राइट। PTE के बेस पे भी ऑस्ट्रेलिया में हम लोग माइग्रेट कर सकते हैं। IELTS में अगर मैं कहूँ तो 777 ऑल ओवर 7 बैंड चाहिए मुझे। और उसके अलावा क्या है कि ऑस्ट्रेलिया में PR होने के लिए हम 2 कैटेगरी से कैंडिडेट को देख सकते हैं। एक होता है 189 रीजनल वीजा और दूसरा होता है 190 जो कि जॉब ऑफर होता है। जैसे कनाडा में जॉब ऑफर होता है, वैसे सेम ऑस्ट्रेलिया में भी जॉब ऑफर होता है। जॉब ऑफर मैंने जैसे बताया कि पॉइंट्स को इंक्रीज करने के लिए यूज होता है। तो अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो किसी एम्प्लॉयर के थ्रू हमें 190 सब क्लास के तहत हमको वहाँ की जॉब ऑफर चाहिए, तब हम लोग उनका PR कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे इस तरह से नहीं जाना है तो मैं सिंपली 189 सब क्लास वीजा से कैंडिडेट का जो मतलब स्किल है, ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि कैंडिडेट की स्किल को ध्यान में रखते हुए PR होता है जी। अगर जैसे मैं अगर कनाडा की बात कर लूँ तो कनाडा में कैसा है कि मास्टर कर लिया, BCom कर लिया, MCom कर लिया तो कनाडा में इजीली हो सकते हैं PR। लेकिन अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया में ये सीन है कि आपने कौन सी स्किल से पढ़ाई की है। सपोज आप IT इंजीनियर हैं, आप नर्सिंग से हैं, ठीक है, तो आपकी स्किल को ध्यान में रखते हुए हम लोग वेटसिस इट्स अ बॉडी लाइक WES, WES मतलब वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज फॉर कनाडा। तो यहाँ पे यूज होता है वेटसिस। तो वेटसिस से आपकी स्किल को हम लोग मैच करेंगे। अगर वहां से आपके फुल पॉइंट्स आ जाते हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर ऑस्ट्रेलियन PR, मतलब 90% आपका काम डन हो गया जी। इस तरह से यहाँ ऑस्ट्रेलिया का PR होता है जी। તો ઓસ્ટ્રેલિયાનું PR થવું હોય તો હવે તમને માહિતી મળી જ ગઈ ને કે PR કેવી રીતે થવું પડે, અને દરેક કેટેગરીમાં તમારે 7 બેન્ડની જરૂર છે તો તમે ઓસ્ટ્રેલિયામાં PR થઈ શકો। મને લાગે છે કે તમને બધાને બહુ જ રસ પડ્યો છે, કારણ કે હવે બધાના સપના સાકાર થશે જો આવા એડવાઇઝર આપણને મળી જાય। તો મને નથી લાગતું કે આપણે બધા જ અહીંયા ભારતમાં રહીએ, પણ મારું પણ સપનું છે કે હું હવે આ જ એડવાઇઝર સાથે વિદેશમાં જાઉં। કે હવે વિદેશમાં જવાનું સપનું મારે આજે ને આજે પૂરું કરવું છે, પરંતુ હજી પણ ઘણી બધી વસ્તુ એવી છે જે તમને નથી ખબર અને એ જાણવી તમારા માટે જરૂરી છે। તો જ મને લાગે છે ત્યાં સુધી તમે વિદેશમાં કોઈ પણ જાતની તકલીફ વેઠ્યા વગર ઇઝીલી તમે વિદેશમાં પણ સર્વાઈવ કરી શકશો। તો ચલો હવે આજ આપણી જે ચર્ચા છે તેને આગળ વધારીએ। नीता जी से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, नीता जी अगर विजिटर वीजा में हमको कोई रिजेक्शन आते हैं तो विच काइंड ऑफ स्टेप्स वी फॉलो, हमको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं तो वो रिजेक्शन है वो हमारा खत्म हो जाए? हाँ जी नीता जी। हाँ जी हाँ जी। એના પહેલા મારે એક નાનકડો ક્વેશ્ચન છે કે અમારા દર્શક મિત્રો ગુજરાતીમાં પણ છે, તો શું તમે થોડું ગુજરાતીમાં અમારા દર્શક મિત્રોને સમજાવશો? શ્યોર, હું ગુજરાતીમાં ટ્રાય કરીશ। જો ક્યાંક શબ્દોની કંઈક આગળ પાછળ થાય તો પ્લીઝ મને માફ કરજો।
વિઝિટર વિઝા માટે જો હું અગત્યની વસ્તુ કહું તો વિઝિટર વિઝામાં કેવું છે કે તમારા રિજેક્શન ના આવે એને ધ્યાનમાં રાખતા કેન્ડિડેટને સૌથી પહેલાં એનો સ્ટ્રોંગ ટાઈપ બતાવવો પડે. એટલે કે હું અગર સપોઝ મારી હોમ કન્ટ્રી છોડીને હું બીજી કન્ટ્રીમાં જઈ રહ્યું છું ફરવા માટે, તો હું ફરવા માટે જઈ રહ્યો છું તો એ કયા કયા સ્પેસિફિક કન્ટ્રીના જે ટુરિસ્ટ પ્લેસ છે, જે ફરવા માટે જે જગ્યાઓ તમે વિચારી છે, તો એ જગ્યાઓનો તમે એક આઇટનરીમાં ડિસ્ક્રિપ્શન આપો કે હું આ ટાઈમે અહીંયા લેન્ડ કરીશ, આ જગ્યાએ ફરવા જઈશ અને આનાથી પછી આ જગ્યાએ ફરવા જઈશ. મારી પ્રોપર હોટલ બુકિંગ હોવી જોઈએ તમારી પાસે. થર્ડ વસ્તુ કે કેન્ડિડેટ પાસે કમ્પ્લીટલી ફંડ્સ હોવા જોઈએ શો કરવા માટે. જો ફંડ્સ શો કરવા માટે નહીં હોય તો કેન્ડિડેટ કે પછી ઇમિગ્રેશન ઓફિસરને એવું જ લાગશે કે તમે આઉટ ઓફ કન્ટ્રી સર્વાઈવ નહીં કરી શકો, રાઈટ? જો તમે સર્વાઈવ નહીં કરી શકો તો તમે ત્યાં જ જઈને રહી જવાના છો. એટલે ઇમિગ્રેશન ઓફિસરના મગજમાં એક જ વસ્તુ આવતી હોય છે કે તમે ત્યાં જઈને રહી જશો એટલે તમને રિફ્યુઝલ આપી દેતા હોય છે, રાઈટ? ચોથી વસ્તુ એ છે કે તમારે સ્ટ્રોંગ ટાઈપ બતાવો છે કે હું જે પણ કન્ટ્રીમાં જઈ રહ્યો છું, હું ત્યાં જઈને હું રિટર્ન ઇન્ડિયા પાછો આવીશ, કે જે તે મારી હોમ કન્ટ્રીમાં પાછો આવીશ, રાઈટ? તો આ વસ્તુ છે. આ 4-5 એવા સ્ટેપ્સ अगत्यना છે જે विजिटर वीजा में ध्यान में रखवा मुजब છે. अगर मैं इसको हिंदी में अगर मैं डिस्क्राइब करूं, जो कि मेरे दर्शक मित्र हैं वो देख रहे हैं हमारे साथ, तो अगर मैं यही बोल रही हूँ कि बस स्ट्रॉन्ग टाइप हमें दिखाना है कंट्रीज का. होम कंट्रीज आप जहाँ पे भी रह रहे हो उसी होम कंट्रीज का स्ट्रॉन्ग टाइप दिखाना है हमें, कि मैं अगर जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ से रिटर्न आऊँगा और मेरे पास सफिशिएंट फंड है, मैं रिटर्न जाकर वापस आऊँगा, और मैं जहाँ से जा रहा हूँ मैं कौन कौन सी जगह पे मतलब घूमने वाला हूँ, मेरी कौन कौन से टूरिस्ट प्लेसेस है. तो अगर मैं कनाडा में लैंड कर रहा हूँ तो कनाडा में कौन कौन सी ऐसी जगह घूमने लायक है, तो उसे उसकी आइटनरी में मेंशन करना होगा. आइटनरी मीन्स के कैंडिडेट की आइटनरी ये होती है कि आप कौन कौन सी जगह पे स्टॉप है आपका, कौन कौन सी जगह पे साइट सीन देखने वाले हैं. तो दिस इज कॉल्ड आइटनरी एक्चुअली. तो आइटनरी, होटल बुकिंग, सफिशिएंट फंड, ये सब स्टेप्स को ध्यान में रखना. प्लस स्ट्रॉन्ग टाइप की आपको इमिग्रेशन ऑफिसर रिजेक्शन ही ना दे पाए, कि वो उनको ऐसा आइडिया आ ही जाना चाहिए कि आप जाकर रिटर्न वापस आओगे. आप एटलीस्ट ये दिखाइए कि मेरे पेरेंट्स यहाँ पर है, मेरी प्रॉपर्टी यहाँ पर है, मेरे बच्चे यहाँ पर है, तो मैं घूम के रिटर्न ही वापस आऊंगा. तब जाकर के कहीं इमिग्रेशन ऑफिसर को लगता है कि आप सही हो, तब जाकर के आपका विजिटर वीजा का अप्रूवल आता है. तो ये सारी चीजें हैं ध्यान में रखने लायक. जी नीता जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये रहेगा, आपने गुजराती बहुत अच्छी बोली. थैंक यू. यस, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये रहेगा कि बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं कि उनका भी ड्रीम होता है कि मेरा बच्चा भी कंट्री में जाके पढ़ाई करे, बट उनके पास इतने पैसे नहीं होते. यानी कि जो मिडिल क्लास होते हैं उनके भी सपने होते हैं, सपनों की उड़ान जैसे हमने टाइटल दिया है, कि उनके सपने होते हैं पर उनके पास उतना बजट नहीं होता. तो अगर उस टाइप के पेरेंट्स आपके पास आते हैं तो वो आप कौन कौन सी कंट्री उनको सजेस्ट करती है, और बजट कब तक मीन्स कितना होता है? अगर पेरेंट्स मेरे पास आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेकर के कि मैडम मुझे मेरे बच्चे को स्टडी करने बाहर भेजना है, मेरा भी सपना है कि जो मैंने प्रॉब्लम यहाँ फेस की है मेरे बच्चे आगे से फेस ना करें, तो कुछ माँ बाप ऐसे होते तो पैसे लेकर आ जाते कि मैडम मेरे बच्चों को यहाँ माइग्रेट करो कंट्री में. लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, मैं कभी इस तरह से नहीं करती. मेरा कहना यही होता है कि आपके बच्चे का आईएल्स का रिजल्ट आ जाए एक बारी. आईएल्स के बेस पे भी हम लोग भेज सकते हैं, विदाउट आईएलटीएस के बेस पे भेज सकते हैं. और मैं अगर कम बजट वाली कंट्री की बात करूं तो मैं उनको यूरोपियन कंट्री का सजेशन दूंगी. ओनली बिकॉज ऑफ कि यूरोपियन कंट्री में ऐसा होता है कि जो ट्यूशन फीस होती है, जिसे हम कॉलेज की फीस कहते हैं, राइट? जो ट्यूशन फीस होती है वो कम बजट में होती है. जैसे पर ईयर का मान लीजिए आप 4 से 7 लाख के बीच में होती है. अगर मैं कनाडा की बात करूं स्टडी वीजा की, तो पर ईयर ट्यूशन की फीस होती है कम से कम आप मान लीजिए 12 से 15 लाख के बीच में ट्यूशन फी होती है. यूनिवर्सिटी की उससे भी डबल हो जाती है, कॉलेज की फीस उससे कम रहती है थोड़ी जी. तो ये कनाडा और यूरोपियन स्टडी वीजा में अंतर ये है, ठीक है. उसके बाद अगर बच्चे को वो फर्स्ट डे भी वहीं पे भी लैंड होता है तो बच्चा वहां पे अर्न करना शुरू हो जाता है. वो हम लोग आगे भी टॉपिक में चर्चा करेंगे कि भाई हम लोग बच्चे को अगर भेजते हैं तो वो अर्निंग कर सकता है या नहीं, किस तरह से जी. हाँ, लेकिन मैं यूरोपियन कंट्री सजेस्ट करूंगी. 4 से 7 लाख का बजट रहता है, उसमें बच्चा अच्छे से माइग्रेट हो सकता है, और 2 ईयर स्टडी, 3 ईयर वर्क परमिट, और उसके बाद 5 साल स्टे करने के बाद यूरोपियन कंट्री में वो आराम से PR ले सकता है जी.
તો હવે આપણને અહીંયા એ ખબર પડી કે પીઆર લેવા માટે જો કોઈ એવા મા બાપ છે જે મિડલ ક્લાસ છે પરંતુ એમનું પણ સપનું છે કે મારું બાળક પણ સપનાની ઉડાન ભરે અને કન્ટ્રીમાં જાય, તો હવે એને પણ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી કે જેમ આપણા એક્સપર્ટ એડવાઇઝર આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે એમને એવું કીધું કે 4 લાખથી લઈને 7 લાખ સુધી તમારો બાળક જે છે તે યુરોપ कंट्री જઈ શકે, એનું ભવિષ્ય બનાવી શકે છે। नीता जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये रहेगा कि अगर गोल्फ कंट्री में नर्स बनना है तो उसका क्राइटेरिया क्या रहेगा? ओके, गल्फ कंट्री में नर्स बनने का सबसे बड़ा क्राइटेरिया ये है कि आपको MOH हाद ये दोनों एग्जाम देनी पड़ेगी। MOH मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर डिपार्टमेंट ऑफ UAE, ठीक है। तो इस तरह से MOH और हाद सर्टिफिकेट, राइट। तो जैसे कुवैत है, अरब कंट्रीज हो गई, कुवैत है, दुबई है, गल्फ में जितनी सारी भी कंट्रीज आती है, तो इन कंट्रीज का क्या होता है कि सर्टिफिकेशन होना चाहिए। सर्टिफिकेशन होने के बाद ही इनको जॉब मिलती है, राइट। तो उसके पहले हम क्या करेंगे, सपोज अब कोई कैंडिडेट मेरे पास आ गया, मैडम मुझे जाना है आउट ऑफ कंट्री या मुझे गल्फ में मुझे गल्फ ही जाना है नर्सिंग का करने जॉब करने के लिए, तो मैं उनको ये कहती हूँ कि अब डायरेक्टली तो आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे, तो अब स्टिल आप ये कीजिए कि आप एक कम्युनिटी सेंटर में केयर गिवर में आप या बेबी केयर में आप या नैनी नर्स की जॉब ले सकते हैं, जिनकी सैलरी मैंने जैसे बताया पहले भी कि 3000 दिरहम से स्टार्ट होती है जी, ठीक है। 3000 दिरहम से स्टार्ट होती है, तो कम्युनिटी सेंटर में वो एज अ केयर गिवर, बेबी केयर और नैनी नर्स की तरह वो जॉब कर सकती है। इन ड्यूरेशन इन बिटवीन वो MOH और हाद एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, वो पास हो सकते हैं। उसके बाद वो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, दुबई की गवर्नमेंट या किसी भी गल्फ कंट्री के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में वो जॉब कर सकते हैं जी, और सैलरी का स्केल बढ़ सकता है उनका जी। અહીંયા કેટલું મસ્ત લાગી રહ્યું છે ને, કેવી અવનવી માહિતી મળી રહી છે। આપણે જસ્ટ ખાલી એટલું વિચારતા હોઈએ છીએ કે આપણે કેનેડા જઈએ, UK જઈએ, ઓસ્ટ્રેલિયા જઈએ અને પછી આપણું ફ્યુચર બનાવી લઈએ, પણ ફ્યુચર બનાવવામાં પણ ઘણી બધી પ્રોસેસ હોય છે, પ્રોસેસમાંથી પસાર થઈએ પછી જ આપણે સપનોની ઉડાન ભરી શકીએ છીએ। ફરીથી આ ઘણી બધી વાતો છે આપણે કરીશું, પરંતુ અત્યારે જે સવાલો છે, જે અટકળો મારા મગજમાં છે, તમારા મગજમાં છે, બધા જ અટકળોના જવાબ એડવાઇઝર પાસેથી લઈ લઈએ અને પછી આપણે બધા જ જે એડવાઇઝરને પૂછીશું ને નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે એવો એક રાઉન્ડ રાખીશું જેમાં તમારી ઈચ્છા હોય, તમને કંઈ જાણવું હોય કે ખરેખર વિઝા, સ્ટુડન્ટ વિઝા પર વાત કરવી છે, વિઝિટર વિઝા પર વાત કરવી છે, પર્ટિક્યુલર ટોપિક સાથે આપણે આ જ એડવાઇઝરને મળીશું અને આ એડવાઇઝર આપણને પર્ટિક્યુલર ટોપિક પર બધી જ માહિતી આપશે। જેમ કે આપણે સ્ટુડન્ટ વિઝામાં જવું છે, વિઝિટર વિઝા પર જવું છે, તો તમામ પ્રકારની માહિતી આપણે નીતાજી પાસેથી મેળવીશું। પરંતુ એ કોઈ બીજા સમય, અત્યારે આપણે જે ટોપિક પકડ્યો છે કે સપનોની ઉડાન, તો એ આજે આપણે અહીંયા પૂર્ણ કરીએ। ત્યારબાદ નીતાજી, મારો તમને એ સવાલ રહેશે कि अभी बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं कि नॉमिनल प्राइस में भी बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि नॉमिनल प्राइस ज्यादा होती है, पर मैं एक कंट्री की बात करूं तो कनाडा में अगर हमको विजिटर वीजा में नॉमिनल की प्राइस क्या होती है? कनाडा विजिटर वीजा के जो एप्लीकेशन नॉमिनल चार्जेस होते हैं वो 20,000, 50,000 से 20,000 एप्लीकेशन चार्ज होते हैं विद GST, और जो एम्बेसी फीस होती है वो 11,500 होती है, 185 कैड, ठीक है। तो इस तरह से नॉमिनल चार्जेस होते हैं, और विजिटर वीजा में कोई गारंटी नहीं देता। ये सबसे पहले मैं आपको ये प्लस पॉइंट में हाईलाइट करना चाहूंगी। यहाँ के मेरे दर्शक मित्र देख रहे हैं जैसे जी। इसमें क्या होता है कि विजिटर वीजा में मुझे काफी सारे क्लाइंट आते हैं एप्लीकेशन लेकर के, मैडम मुझे विजिटर वीजा करके दीजिए, और क्या उसमें गारंटी मिलेगी? तो कभी विजिटर वीजा की कोई गारंटी नहीं देती, जो गारंटी देता है वो अक्सर झूठ होता है। तो विजिटर वीजा की गारंटी इस वजह से नहीं होती है बिकॉज जो कैंडिडेट के सफिशिएंट डॉक्यूमेंट है उसको ध्यान में रख करके एम्बेसी या इमिग्रेशन ऑफिसर आपको अप्रूवल या रिजेक्शन देता है, ठीक है। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी, जैसे कोई मेरे पास कैंडिडेट आया, अब उसके पास सफिशिएंट फंड नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग टाइज, जैसे मैंने बताया कि अगर होम कंट्री आने के लिए मुझे एक स्ट्रॉन्ग टाइज बताना पड़ता है जी, कि भाई मैं अगर होम कंट्री को छोड़ के अगर दूसरी कंट्री में अगर मैं जा रहा हूँ तो वो मैं क्यों जा रहा हूँ, और मुझे रिटर्न आने का क्या रीजन है। जैसे मेरे पेरेंट्स यहाँ रहते हैं, मेरे बच्चे यहाँ हैं, मेरी प्रॉपर्टी यहाँ है, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन है रिटर्न आने की। तो इमिग्रेशन ऑफिसर को लगना चाहिए कि आप जाकर रिटर्न वापस आओगे, तब जाकर के कहीं आपको इमिग्रेशन ऑफिसर आपको वीजा का अप्रूवल देता है।
उसके अलावा आपकी पासपोर्ट की हिस्ट्री भी स्ट्रांग होनी चाहिए। अब पासपोर्ट की हिस्ट्री स्ट्रांग कैसे होती है? अगर कनाडा में मुझे विजिटर वीजा चाहिए तो उसके पहले आपने ऑलरेडी 2 या 3 कंट्री में ऑलरेडी विजिट किया होना चाहिए। आप डायरेक्टली अगर मेरे पास अगर आप बोलेंगे कि कनाडा विजिटर वीजा चाहिए मुझे और मुझे रिटर्न वापस आना है और मुझे अप्रूवल मिल ही जाए, क्या गारंटी देंगे? विच इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट में अगर मिस्टेक्स है तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती, या इमिग्रेशन ऑफिसर कुछ नहीं कर सकता। इमिग्रेशन ऑफिसर को डॉक्यूमेंट बिल्कुल परफेक्ट दिखाने हैं और आपको ये बताना है कि मैं जाकर रिटर्न आऊंगा। और आपको पासपोर्ट की हिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, अगर कनाडा यूएसए जैसी कंट्री के लिए आप सोच रहे हैं कि मुझे वहां जाकर के मुझे विजिट करना है, टूरिस्ट करना है, मुझे घूमना है, आपके सपना है, तो मैं आपको अभी से ही ये एडवाइस करूंगी, आप छोटी छोटी कंट्री में विजिट कीजिए, एशियन कंट्री में विजिट कीजिए, आप यूरोपियन कंट्री में विजिट कीजिए विजिटर वीजा लेकर के। तो इस तरह से आप अपनी पासपोर्ट की हिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और विजिटर वीजा कनाडा, यूएसए, यूके 5 इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है, उसमें आप एलिजिबल हो सकते हैं डायरेक्टली विजिटर वीजा लेने के लिए। ओके, તો જેમ નીતાજી આપણને જણાવી રહ્યા છે કે કોઈ પણ તમને એવું કહે કે વિઝિટર વિઝા પરમેનન્ટ છે તો સમજી લો એ ફ્રોડ છે, કારણ કે વિઝિટર વિઝા પરમેનન્ટ હોતા નથી। એટલે આ એડવાઇઝર જે સલાહ આપે એને માનજો, કારણ કે એમના પાસે પણ એવા કિસ્સાઓ સામે આવ્યા છે કે એમની સલાહ નથી માન્યા અને પછી પાછા એમની જોડે પાછા આવ્યા છે સલાહ લેવા માટે। એટલે કે વિઝિટર વિઝા જે છે તે પરમેનન્ટ ન હોઈ શકે। मैम, मैंने कई बार सुना है कि सेंड्रम, एक वर्ड मैंने ऐसा सुना है, तो वो एक्चुअली क्या होता है? सेनेगन। यस, हाँ, सेनेगन वीजा वो 26 कंट्रीज का एक ही वीजा है जी, सेनेगन। हाँ, सेंजन वीजा, कुछ लोग सेनेगन बोलते हैं, कुछ उसका उच्चारण सेंजन करते हैं, राइट? तो दोनों ही राइट है अपने एरिया में, क्योंकि मैं कभी किसी को नहीं बोल सकती कि आपका उच्चारण गलत है, क्योंकि मुझे तो सिर्फ समझाना ही है कि सेंजन वीजा है क्या। सेंजन वीजा 26 कंट्री का एक ही मिश्रण और एक ही वीजा है, ठीक है, जिसमें कैंडिडेट 26 कंट्रीज में फ्लाई कर सकता है। और 26 कंट्री में सपोज मैंने उसको पोर्टुगल का वीजा दिया, ठीक है, सेंजन कंट्री का पोर्टुगल का वीजा दिया, तो वो कैंडिडेट विदाउट वीजा एनी परमिशन वो बाय रोड बाय ट्रेन वो फ्रांस जा सकता है, वो इटली जा सकता है, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्वीडन, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, ये 26 कंट्रीज आती है, ठीक है। तो उसमें ये इजीली बाय रोड जा सकता है, बाय ट्रेन जा सकता है जी। तो ये सारे क्राइटेरियाज है 26 कंट्रीज का एक ही वीजा विच इज कॉल्ड सेंगन वीजा जी। तो मैम, अगर जैसे आपने बताया तो सेंगन वीजा में कौन कौन सी कंट्री आती है, कौन कौन सी कंट्री उसमें ऐड होती है? सेंजन वीजा में 26 कंट्रीज, जैसे मैंने आपको बताया, जो 26 कंट्रीज शामिल है। अगर मैं उसका नाम लेना चाहूँ तो काफी लंबी लिस्ट है, जितना खैर मुझे याद है उतना मैं जरूर बताऊंगी। फर्स्ट है ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फिर है फिनलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्वीडन, ग्रीस, फिर है लाटविया, लिथुनिया, लक्समबर्ग करके भी है एक कंट्री है। काफी सारी कंट्रीज है, डेनमार्क भी आ गई उसमें, बहुत सारी कंट्रीज है 26। और अभी 2022 से 27 एक और कंट्री है जो ऐड हो गई है, विच इज कॉल्ड एंडोरा। तो एंडोरा भी एक ऐसी कंट्री है जो अभी सेंजन में हाल ही में शामिल हुई है, जो शायद दर्शक मित्रों को नहीं पता है, लेकिन 26 नहीं, अब 27 कंट्रीज में आप विदाउट वीजा आप जा सकते हैं, वाया रोड, वाया बस, वाया ट्रेन, कैसे भी, लेकिन आपको सबसे पहले सेंजन में एंटर होना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा क्राइटेरिया है और विच इज टफ थिंग जी। तो હવે પણ આપણે જો 27 કંટ્રીની મુસાફરી કરવી હોય તો હવે આપણે સેન્ઝનમાં એડ થવું પડશે, અને મેડમ જે રીતે જણાવી રહ્યા છે કે બહુ ટફ છે, એટલે એના માટે આપણે થોડી મહેનત કરવી પડશે, કારણ કે આ મોકો તો ના છોડાય ને। 27 કંટ્રીમાં વિધાઉટ વીઝા જો ફરવા મળતું હોય તો આપણે ત્યાં જઈ શકીએ, પરંતુ પ્રોસેસ બહુ લાંબી છે। उसके बाद मैम मेरा क्वेश्चन आपको ये रहेगा कि रेगुलेटिव प्रोफेशन क्या होता है? हाँ, रेगुलेटेड प्रोफेशन क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि रेगुलेटेड प्रोफेशन विच मीन्स आपको लाइसेंस बेस्ड जो प्रोफेशन होते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बता सकती हूँ, सीए को अगर आउट ऑफ कंट्री जॉब करनी है तो वो डायरेक्टली वहाँ पे जॉब नहीं कर सकता। वो अगर मुझे बोले कि मैडम मुझे सीए की ही जॉब चाहिए, तो विच इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली। उसको वहाँ का लॉ पढ़ना होगा, जीएसटी क्या है उसको सब समझना होगा, यहाँ का जीएसटी है, यहाँ का टैक्सेस वगैरह जो भी होता है उनका, तो वो थोड़ा डिफरेंट होता है आउट ऑफ कंट्री का, राइट। तो उसको वहाँ का स्टडी करना होगा, वहाँ की एग्जाम देनी होगी,
लाइसेंस की प्रोसेस करनी होगी, उसको लाइसेंस मिले, उसको वहां का पीआर मिले, तब जाकर के उसको रेगुलेटेड प्रोफेशन में सेम फील्ड में जॉब मिलता है। अगर मेरे पास कैंडिडेट कुछ ऐसे भी आते हैं कि जैसे मैडम मैं तो नर्स हूँ, मुझे डायरेक्टली एक ही स्ट्रीम में भेज दीजिए, तो विच इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल फ्रॉम माई साइड कि ये कैनेडियन गवर्नमेंट या किसी भी मैं जो भी कंट्री के लिए आते हैं उसी गवर्नमेंट के रूल्स को मुझे फॉलो करना पड़ता है, उसको लाइसेंस दिलवा के बाद में मैं एग्जाम दिलवा सकती हूँ। स्टिल अगर मैं आपको बोलूँ कि हमारा यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वहां के लिए 0 ही है जी। तो वो कैंडिडेट को खास समझना चाहिए। जिसको अर्न करना है वो तो कोई भी फील्ड पकड़ सकता है, लेकिन अगर सेम फील्ड में जाना है तो उसको पीआर लेके जाना पड़ेगा या लाइसेंस बेस्ड एग्जाम देनी होगी। तो ये सारे प्रोसेस है रेगुलेटेड प्रोफेशन में, जिसमें सीए आता है, आईटी इंजीनियर्स आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, नर्सिस आती है, काफी सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जी। तो मैम उनकी सैलरी मींस क्या होती है वहां पे, अगर वो पीआर हो गए इस स्ट्रीम में तो फिर उनकी सैलरी? अगर कनाडा में मैं अगर कहूँ तो शुरुआती सैलरी उनकी 3 से 5 हजार कैड होती है जी। और अगर मैं दिरहम की बात करूँ गल्फ कंट्री में, तो गल्फ कंट्री में भी 3 से 6 हजार दिरहम सैलरी मिलती है आईटी इंजीनियर्स वालों को। अगर मैं यूरो में बात करूँ तो उनको 5 से 6 हजार यूरो मिलते हैं यूरोपियन कंट्रीज में रेगुलेटेड प्रोफेशंस को। जी। तो हम आगे बात करेंगे मैम कि बहुत लोग बोलते हैं, बहुत स्टूडेंट बोलते हैं कि हमको कनाडा जाना है, राइट? तो कनाडा अगर स्टूडेंट वीजा पे जाए तो वो प्रोसेस पूरी क्या होती है? कनाडा अगर स्टूडेंट वीजा पे जाना है तो सबसे पहले तो बजट को ध्यान में रखना पड़ता है जी। पहले तो अगर मैं उसका बोलूंगी तो आईएल्स बैंड तो 6.5 ओवरऑल आईएल्स के बैंड मुझे चाहिए। अगर उसको नजदीकी किसी इंटेक में उसको एडमिशन अगर लेना है तो सितंबर इंटेक में सपोज उसको एडमिशन लेना है, तो मैं कैंडिडेट से ये कहूंगी कि आप डुओलिंगो की एग्जाम दीजिए। तो डुओलिंगो की एग्जाम पास करेगा जैसे ही कैंडिडेट, तो मैं उसको नजदीकी इंटेक में एडमिशन दिलवा सकती हूँ। लेकिन जब वीजा फाइलिंग की बारी आएगी तो मुझे ऑब्वियसली आईएल्स के पॉइंट्स मुझे चाहिए विच इज 6.5। और उसके अलावा अगर मैं खर्चे की बात करूं तो खर्चे में ये रहता है कि पर ईयर का खर्चा जो रहता है स्टूडेंट वीजा में वो रहता है कुछ 10 लाख से 13 या 14 लाख तक होता है पर ईयर का ट्यूशन फी विच इज कॉल्ड कॉलेज फीस, राइट। उसके अलावा आता है जीआईसी गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। ये एक इन्वेस्टमेंट है, मतलब कैनेडियन गवर्नमेंट में आपको एक स्कोशिया बैंक होता है उसी से ही आपको 10,000 कैड आपको डिपॉजिट करने होते हैं और एवरी मंथ स्टूडेंट को 666 कैड रिटर्न मिलते हैं उसको सरवाइव करने के लिए वहां पे कनाडा में जी। तो ये 10,000 कैड भी आपको मतलब वो भी एक खर्चा है उसका स्टडी वीजा का। जीआईसी का खर्चा रहता है, ट्यूशन फीस का खर्चा मिलता है। और ट्यूशन फीस जो अगर मैं बोलूंगी तो 1 साल की नहीं होती, हमेशा 2 ईयर स्टडी वीजा पे जाना पड़ता है स्टूडेंट को। वीजा 1 साल का मिलता है, 1 साल का वीजा वहां पे खत्म होने के बाद दूसरे साल एक्सटेंड करना पड़ता है। एक वो भी नॉमिनल चार्जेस रहते हैं, गवर्नमेंट चार्जेस रहते हैं। उसके अलावा गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट जैसे मैंने बताया वो भी है। तो आप मिनिमम मान लीजिए कि 30 से 35 लाख का खर्चा होता है अगर स्टूडेंट वीजा पे कनाडा स्टूडेंट वीजा पे अगर जाना हो तो जी। तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि कनाडा में कौन कौन से स्टेट में ब्लड रिलेशन हमारा मैच किया जाता है, वो कौन कौन सी कंट्री है, स्टेट है, सॉरी कौन कौन से स्टेट है कनाडा में? आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ, तो कनाडा में अगर ब्लड रिलेशन की अगर मैं बात कहूँ तो पीआर क्या होता है, सीआरएस पॉइंट पे पूरा बेस होता है। इट्स गेम ऑफ स्कोर, ठीक है। पीआर इज अ गेम ऑफ स्कोर। अगर मैं बोलूँ कि अगर आपको पीआर चाहिए तो मुझे पूरा सीआरएस चेक करना पड़ता है, जिसमें आपको एजुकेशन का पॉइंट्स मिलता है, क्वालिफिकेशन का, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो आईएल्स कहा जाता है, राइट। फिर सेल्पिप भी चलती है, सेल्पिप की भी एक एग्जाम आती है, वो भी हम लोग दे सकते हैं, राइट। इस तरह से प्लस एडेप्टेबिलिटी के मार्क्स भी पॉइंट काउंट होते हैं। उसके अलावा अगर मैं बोलूँ कि अगर ब्लड रिलेशन की बात करूँ तो एडेप्टेबिलिटी में ही ब्लड रिलेशन आता है। तो अगर आपका कोई वहाँ पे आपका ब्लड रिलेशन वाला जैसे सगा भाई हुआ, सगी बहन हुई, सिस्टर है, मदर है या फादर कोई भी वहां पे अगर रह रहा हो या ब्रदर रह रहा हो तो उसके फुल पॉइंट्स मिलते हैं, तब जाकर के हम लोग पीआर के लिए इजीली एलिजिबल हो जाते हैं। हमारे फुल पॉइंट होते हैं और हम लोग वो हमको स्पॉन्सर कर सकते हैं। और वैसी जो प्रोविंस है कनाडा में विच इज कॉल्ड SINP मींस सस्कैचुअन और मैनिटोबा जी। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये रहेगा कि हमने कनाडा की बात कर ली, ऑस्ट्रेलिया की बात कर ली, सब में विजिटर वीजा है। अब मुझे ये जानना है कि यूएसए में विजिटर वीजा कब से ओपन हो रहा है? जी,
यूएसए में विजिटर वीजा कब से ओपन हो रहा है, ये एक्चुअली सभी दर्शक मित्रों का यही सवाल है, बिकॉज सब लोग यूएसए जाने के लिए बहुत आतुर हो रहे हैं कि यूएसए जाना है, लेकिन एक्चुअली हमारे नजदीकी अभी सितंबर में ही यूएसए वीजा ओपन हो रहा है। यूएसए विजिटर वीजा की डेट्स जो ओपन हो रही है, सितंबर से आप अपनी यूएसए विजिटर वीजा की एप्लीकेशन रख सकते हैं। अगर आप मुझे पूछेंगे कि यूएसए विजिटर वीजा की डेट्स कब तक अवेलेबल है, तो उसके लिए मैं आपको ये कहूंगी कि यूएसए विजिटर वीजा की जो डेट्स है आपको ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर तक मिलेगी, मतलब 2023 में मिलेगी। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि ऑलरेडी इतने लोगों ने एप्लीकेशन करके रखी है, तो प्रोफाइल सारी बल्क में चल रही है, ठीक है। तो बल्क में प्रोफाइल चल रही है, तो पहले ऑब्वियसली एम्बेसी बल्क प्रोफाइल को लेगी, उसके बाद न्यू को लेगी। तो आप समझिए कि कितने लाखों लोगों ने, कितने बिलियन लोगों ने एप्लीकेशन हर अपनी होम कंट्री से की होगी, हर एक जगह से उन्होंने एप्लीकेशन की है। तो बल्क में पहले लेंगे, बाद में न्यू को लेंगे, तो आप ऑब्वियसली वेट करते लिए 2023 में शायद आपका नंबर लग सकता है। जी, यानी कि सितंबर में हो जाएगा, पर अभी डेट हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। जी, डेट डिक्लेयर नहीं कर सकते, आप एप्लीकेशन करके रख सकते हैं। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि अब यूएसए सबको जाना है, राइट? तो यूएसए जब जाना है तो थोड़ा छोटा बहुत इंटरव्यू भी कंडक्ट होता है, तो वो इंटरव्यू में हमको कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? यूएसए विजिटर वीजा में जब इंटरव्यू कंडक्ट होना होता है, तो आपको इमिग्रेशन ऑफिसर क्या सवाल करते हैं, बहुत लंबी लिस्ट है उसकी। जो मुझे लग रहा है मैं वो आपको जरूर कहूंगी, थोड़ा शॉर्ट में ब्रीफ में कहूंगी। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन आता है कि आप यूएसए क्यों जा रहे हो, यूएसए क्यों जा रहे हो, क्या रीजन है आपका यूएसए जाने का। क्योंकि हम लोग को जब यूएसए के वीजा चाहिए होते हैं, वो विच इज विजिटर वीजा की कैटेगरी होती है। उसमें विजिटर वीजा की कैटेगरी में होती है, तो हमको ऑब्वियसली यही दिखाना है कि हमको जाकर रिटर्न आना है। उसे हमको इमिग्रेशन में ये नहीं दिखाना है कि हमको मतलब वहां पे ही रह जाना है, फिर तो आपका रिफ्यूजल ही आना है। तो पहले तो DS 160 फॉर्म आपने भरा है या नहीं, जो यूएसए की विजिटर वीजा की एप्लीकेशन के लिए फिल होता है, DS 160, ठीक है। DS 160 आपने फिल किया है या नहीं, यूएसए आप क्यों जा रहे हो, यूएसए में आपका कौन रहता है, आपका सगा कोई रहता है या नहीं। अगर आपने यस बोल दिया तो उसको लेके और 10 क्वेश्चन आएंगे, कि जैसे आपने मुझे बोल दिया कि नहीं मेरा सन रहता है या मेरी सिस्टर रहती है। अच्छा, सिस्टर रहती है, कोई बात नहीं, तो सिस्टर कितने साल से रह रही है, और सिस्टर क्या काम करती है, उसकी क्या जॉब है, क्या वो IT रिटर्न भरती है, क्या वो उसकी सैलरी कितनी है, वो कौन से स्टेटस पे गई है, मतलब अगर वो ग्रीन कार्ड होल्डर है तो वो ग्रीन कार्ड होल्डर पे है, कौन से स्टेटस पे विजिटर वीजा पे गई है। तो ये सारे क्वेश्चंस होते हैं जी। उसके अलावा आपको ये भी पूछ सकते हैं कि इससे पहले आपने कभी US वीजा की एप्लीकेशन किया है, क्या आपका रिफ्यूजल है, कोई इमिग्रेशन हिस्ट्री है, और अगर इससे पहले आप यूएसए कभी गए हुए हैं या इससे पहले किसी और कंट्री में आपने विजिट किया है, तो और आपका जो फंड्स है वो कितना है, ठीक है, फंड्स। और उसके अलावा आपकी हिस्ट्री पूछेंगे, आपका रिजेक्शन पूछेंगे। सारी चीजें को ध्यान में रखते हुए हमें बहुत ध्यान से क्वेश्चन के आंसर देने हैं, जो हम लोग आगे के एपिसोड्स में हम जरूर बताएंगे दर्शक मित्रों को, कि अगर यूएस में इमिग्रेशन में अगर आपको कोई दिक्कतें आ रही हैं, इंटरव्यू में कोई दिक्कतें आ रही है, तो हमको कौन से सवालों का सामना करना पड़ सकता है, तो हम लोग आगे जरूर चर्चा करेंगे उस बारे में। तो હવે જ્યારે પણ આપણે યુએસએ જવાની પ્લાનિંગ કરી રહ્યા હોય વિઝિટર વિઝા પર, તો આપણે હવે ચકાસીને સમજી વિચારીને જવાબ આપવો પડશે, કારણ કે જેમ મેડમે બતાવ્યું કે તમે જો કદાચ એક જુઠ્ઠું બોલે એના પાછળ ઘણા બધા 10 સવાલો ત્યાં ને ત્યાં ઊભા થઈ જશે અને પછી તમને ખબર જ નહીં પડે, ખરેખર તમારું એ સપનું ત્યાં જ અટકી જશે। મારો હવે નેક્સ્ટ સવાલ એ છે કે મેમ, अगर हमको कनाडा जाना है तो कनाडा में एक जाने के लिए बोलते हैं कि एक एज लिमिट होती है, तो क्या स्टूडेंट वीजा पे अगर हमको कनाडा जाना है तो एज लिमिट कब तक की हो सकती है? कनाडा स्टूडेंट वीजा कभी एज नहीं देखता है। मैंने लास्ट 42 ईयर की लेडी को भी स्टडी वीजा लेते हुए देखा है। कनाडा कभी स्टडी के लिए एज नहीं देखता, बट स्टिल मैं कहूंगी कि 40 ईयर की एज या 42 या 43 की एज बहुत है, इससे ज्यादा नहीं, बिकॉज फिर बाद में गैप जस्टिफिकेशन भी देना होता है जी। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि मैंने कभी सुना है कि जर्मनी में और इटली में जो स्टडी का जो प्रोसेस होता है वो फ्री होता है, तो क्या ये बात सही है? जर्मनी और इटली में क्या है, अगर बच्चा जर्मनी जा रहा है तो उसको जर्मन की एग्जाम उसको पास करनी होती है। जर्मन एग्जाम जब बच्चा पास करता है तो बच्चे को फ्री स्कॉलरशिप उसको मिलती है, और वो स्कॉलरशिप के अंदर क्या होता है कि उसको फ्री स्टडी का उसको वेवर मिल जाता है। इन द सेम वे अगर मैं बात करूं इटली की, तो इटली में भी सेम है, 5200 यूरो तक उसको बच्चे को इटली में
स्कॉलरशिप मिलता है, ताकि उसकी ट्यूशन फ्री होती है वो माफ हो जाती है, फ्री स्टडी उसका होता है वो माफ हो जाता है। तो मतलब बच्चा फ्री में स्टडी कर सकता है, और जो भी होता है फूड और रिकमेंडेशन देखना पड़ता है। जी, तो मैम अगर बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि अभी आपने बताया कि पैसा फेंक के सब बोलते हैं कि हमको पीआर बना दो, हमको ग्रीन कार्ड दिलवा दो, तो क्या ऐसे फ्रॉड जो लोग हैं वो जब फ्रॉड में से बाहर आए तब आपको जब मिलने आते हैं तो आपकी कंसल्ट की कोई फी रहती है? मेरे पास काफी सारे ऐसे कैंडिडेट्स आते हैं जब मुझे ये बोलते हैं कि भाई मैडम मेरे साथ ये हुआ है वो हुआ है, आप मुझे रास्ता दिखाइए, या तो ऑलरेडी वो लोग एप्लीकेशन कर चुके होते हैं, बाद में वो मेरे पास आते हैं सिर्फ गाइडेंस लेने के लिए। तो मेरी एटलीस्ट कोई अगर किसी ने फाइल ऑलरेडी रख दी है तो मेरी कोई फीस नहीं है, और मैं इसमें हेल्प करती हूँ, और मैंने काफी लोगों को हेल्प भी की है। मैं उसमें कोई अपनी फीस नहीं रखती हूँ, गाइडेंस आप कभी भी ले सकते हैं। जी, તો નીતાજી આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર છે કે આપ બુલેટિન ઇન્ડિયા સાથે જોડાયા અને અમારા દર્શક મિત્રોને અને આપના દર્શક મિત્રોને આપણને સલાહ આપી કે ખરેખર જો તમારે આઉટ ઓફ કન્ટ્રી જવું હોય તો ખરેખર શું પ્રોસેસ કરવી પડે છે। ખાસ આપણે કેનેડા, યુકે, જર્મની, ઇટલી દરેક દેશોનો આપણે અહીંયા સમાવેશ કરીને જે દર્શક મિત્રો છે તેમને આપણે જ્ઞાન આપી દીધું છે કે ખરેખર હવે જો તમારે સપનાઓની ઉડાન ભરવા માટે બહારના દેશમાં જવું હોય તો તમારે શું શું કરવું પડશે। તો આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે આપ બુલેટિન ઇન્ડિયા સાથે જોડાયા। જે રીતે આપણે ચર્ચાઓ કરી કે ખાસ કરીને સપનાની ઉડાન ભરવી હોય તો તેના માટે આપણે કંઈક ના કંઈક થોડું પરિશ્રમ તો કરવું જ પડે, અને આ પરિશ્રમની જો વાત કરીએ તો આજે આપણે જે એક્સપર્ટ આપણી સાથે ઉપસ્થિત હતા, જે એડવાઇઝર આપણી સાથે ઉપસ્થિત હતા, એમને આપણને જણાવ્યું કે જો તમારે યુકે જવું હોય, યુએસએ જવું હોય, લંડન જવું હોય, જર્મની, ઇટલી, કોઈ પણ દેશનું જો તમારે વિઝિટર વિઝામાં જવું હોય, પીઆર બનવું હોય તો તેના માટે શું પ્રોસેસ છે, અને આ તમામની જે પ્રોસેસ છે તે આપણા એક્સપર્ટ, આપણા એડવાઇઝર જે હતા તેમની સાથે આપણને જણાવવામાં આવ્યું। તો આ સાથે મારું એટલું કહેવું છે કે હવે દર બુધવારે આ જ ટાઈમે આપણે દર એપિસોડમાં વિઝા વિશે વાત કરીશું। હવે વિઝા ઘણા પ્રકારના હોય છે, સ્ટુડન્ટ વિઝા હોય છે, વિઝિટર વિઝા હોય છે। હવે હું આપ સૌને એક વિનંતી કરું છું કે હવે તમારે કોઈ પણ એવો પર્ટિક્યુલર ટોપિક હોય કે જેમના વિશે તમારે એડવાઇઝર પાસેથી જાણવું હોય તો એ ટોપિક તમે અમને કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવો। અવશ્ય અમે નેક્સ્ટ બુધવારે આ જ ટોપિક પર ચર્ચા કરીશું જે ટોપિક તમારા દ્વારા અમને આપવામાં આવ્યો છે। તો હવે આ ચર્ચાઓમાં આપણે અહીંયા અટકાઈશું, અહીંયા હું મારી વારીને વિરામ આપીશ અને નેક્સ્ટ બુધવારે આપણે આ ચર્ચાઓ સાથે ફરી જોડાઈશું। ત્યાં સુધી જોતા રહો બુલેટિન ઇન્ડિયા, ભરોસો ગુજરાતનો।